यहीं पे मामा कंस को मार के कृष्ण भगवान खींच के लेके आए। कहते हैं ठाड़े वसुदेव करे पुकार, कैसे जाएंगे यमुना पार, चरण छुए यमुने महारानी, घुटमन घुटमन हो गया पानी। এখানে আসলে যদি মথুরায় আসো তবে অবশ্যই বিশ্রাম ঘাটে এসে এই বোটে অবশ্যই চড়ো। तो मन में सोचने लगे कि इससे तो ऐसा करता हूँ कि लाला को लेके दोबारा से कंस की जेल में ही चलता हूँ। चूँकि कंस मारेगा तो मेरे बच्चे को मारेगा, मुझे तो जीवित छोड़ेगा। चूँकि कंस की दुश्मनी तो मेरे बच्चों से है, मुझसे नहीं है। এইমাত্র মথুরা স্টেশনে নামলাম। এখন স্টেশন থেকে বেরিয়ে হোটেলের দিকে রওনা হব। জন্মভূমি যেখানে সেখানে যাব, সেখানেই একটা হোটেল চুজ করব। নিজেকে কেমন যেন ভাগ্যবান ভাগ্যবান মনে হচ্ছে, মানে শ্রীকৃষ্ণের জন্মভূমিতে আমরা। ঠিক আছে, চলো দেখতে থাকো। স্টেশন থেকে বেরিয়ে এখন আমরা টোটোতে জন্মভূমিতে যাব। এই যে এই টোটো, আমরা টোটো করে এই যে একদম জন্মভূমির সামনে একটা হোটেল নিয়েছি। এই যে খুব ভালো হোটেল। এখন একটু ফ্রেশ হয়ে আমরা যাব বিশ্রাম ঘাট। চলো বিশ্রাম ঘাটে তোমাদের দেখাবো কি কি আছে। এই যে হোটেল থেকে বেরোলাম আমরা, এখন এই যে বিশ্রাম ঘাটের দিকে আসছি। এই সামনে বিশ্রাম ঘাটের দেখা যাচ্ছে, এই যে বিশ্রাম ঘাটের গেট। বিশ্রাম ঘাট যাওয়ার পথেই দ্বারকেশ্বর মন্দির পড়বে। মথুরার পরিক্রমা করলে এই মন্দিরটাও অবশ্যই দেখে নেবে। এই তো গাইস, বিশ্রাম ঘাটের মার্ক দেখা যাচ্ছে। এটা হলো বিশ্রাম ঘাটের গেট। এই গেট দিয়ে চলো ঢোকা যাক। দেখো গাইস, যাওয়ার পথে দু সাইডে কত দোকান, মিষ্টির দোকানে ছড়াছড়ি। চলো বিশ্রাম ঘাটে যাওয়া যাক এখন তাড়াতাড়ি করে। এই বিশ্রাম ঘাট হ্যাঁ না গাইস, এটা আমার প্রথমবার মথুরা এবং বৃন্দাবনের জার্নি, তাই সবাইকে জিজ্ঞেস করেই যাচ্ছি আর কি। এই যে এটাই হলো ভেতরে বিশ্রাম ঘাট। গাইস এখন আরতি হবে, চলো বোটে চড়ে দেখাচ্ছি তোমাদের। আমি নৌকায় আছি। গাইস তোমরা যদি মথুরায় আসো তাহলে এই সন্ধ্যা আরতির সময় বিশ্রাম ঘাট অবশ্যই আসবে। এখানে বিশ্রাম ঘাটে 25 মিনিট চালাবে, 100 টাকা পার পার্সন। এই যে আমাদের পেছনে অনেক আছে, এখানে সবাই বসে আছে। এই যে এখন কীর্তন হচ্ছে। সত্যি কথা বলতে কি গাইস, ভেতরের আনন্দটা মানে বলে বোঝাতে পারছি না। মানে এতটা সুন্দর একটা পরিবেশ, মানে সত্যি খুব সুন্দর লাগছে। ভাইয়া ইধার পানি কিতনা তাক হ্যায়? 3-4 ফুট। এটা 7টা থেকে আরতি শুরু হয়, আরতি পর্যন্ত এগুলো করাবে মানে বোটে, তারপরে একটু ঘোরাবে। মোটামুটি 20-30 মিনিট। এখানে আসতে হলে কৃষ্ণ জন্মভূমি থেকে টোটো করে 5-10 মিনিট লাগবে, হায়েস্টে 15 মিনিট। সেখান থেকে বিশ্রাম ঘাটে চলে আসো। দ্বারকীনাথের যেটা আছে তারপরে শেষ হয়ে গেছে, এখন আমাদের একটু ঘোরাবে। এই যে এখানে আসলে যদি মথুরায় আসো তবে অবশ্যই বিশ্রাম ঘাটে এসে এই বোটে অবশ্যই চড়ো। अच्युतं केशवं विष्णुः रामनारायणं जानकी वल्लभं रामनारायणं जानकी वल्लभं। तेरा ज्यादा रहता है उसमें, ऊपर जाने देते हैं, अंदर नहीं जाने देते। अंदर से बिल्कुल बंद कर रखा है। दिन में जा सकते हो आप ऊपर। कंस रहता था यहाँ। ये रानी का घाट है। कंस किला पहले बहुत बड़ा था, टूट के सारा गिर गया, तो ये छोटा सा हिस्सा रह गया इसका बस। अच्छा बोल रहा हूँ, एक रानी तो इधर है और एक रानी, दो रानी आती है, यही स्नान करती है। ओ अच्छा, दोनों रानी के अलग अलग घाट थोड़ी ना थे। अच्छा अच्छा, झगड़ा नहीं लगता क्या? नहीं, दोनों बहन थी वो। अच्छा दोनों बहन थी। हाँ, जरासंध की पुत्री थी जिसको भीम ने थोड़ी बहुत रह गई है। जो थोड़ी कहाँ पे है, बहुत है। नहीं, थोड़ी बहुत है। ऐसा है ना, पहले एक कालिया नाग था जो यमुना नदी में बैठा था, इसने कृष्ण भगवान ने मार के निकाल दिया। हाँ, हाँ, हाँ। तो जब यमुना मैया सफा हुई थी, लेकिन अब हजारों कालिया हो गए, किस किस को निकाले। बहुत सही बहुत सही बहुत सही। এটা রানীঘাট। হ্যাঁ, কংসের যে দুটো রানী ছিল এখানে রানীরা স্নান করতে আসতো। গাইস তোমরাও যদি বিশ্রাম ঘাটে এসে থাকো তাহলে অবশ্যই কমেন্টে জানিও। डूब जाएगा। इससे तो दोनों की मृत्यु हो जाएगी, कोई भी जीवित नहीं बचेगा। तो मन में सोचने लगे कि इससे तो ऐसा करता हूँ कि लाला को लेके दोबारा से कंस की जेल में ही चलता हूँ। चूँकि कंस मारेगा तो मेरे बच्चे को मारेगा, मुझे तो जीवित छोड़ेगा। चूँकि कंस की दुश्मनी तो मेरे बच्चों से है, मुझसे नहीं है। तो भगवान को लेके लौटने लगे थे। अब भगवान बोले पिताजी को इतने बंधन से छुड़ा लाया, जेल से लेके यमुना नदी तक ले आया, लेकिन अभी मेरे पे विश्वास नहीं है। तो वासुदेव जी को डराने के लिए भगवान ने, वासुदेव जी के हाथ में एक लकड़ी थी, वो घाट किनारे रखी थी, उसका भगवान ने सांप बना दिया।
देखो ये संत घाट है। ये पहले मुसलमानों की मस्जिद थी, जो देखने में अब भी मस्जिद ही लगती है, लेकिन इस समय पे ये मंदिर है। यहाँ से संत लोगों ने और पंडे लोगों ने मिलकर मुस्लिम लोगों को मार के भगा दिया, इसको मंदिर स्थापित कर दिया। तो बाहर से देखते हैं तो अब भी मस्जिद लगती है, लेकिन अंदर से मंदिर है। नाम है इसका संत घाट। अब यहाँ मुस्लिम लोग नहीं आते हैं। पहले किसी समय पे मंदिर ही होगा, उन्होंने मस्जिद किया होगा ये चीज़। हाँ, तो दोबारा से मंदिर ही बना दिया। तो हाथ में लकड़ी थी, उसका स्यांप बना दिया। पैर में लकड़ी के चलने वाले खड़ाऊ, जैसे हम चप्पल पहनते हैं ना, पहले खड़ामू चलते थे लकड़ी के, वो घाट किनारे उतार के रखे थे, उनके शेर बना दिए। जैसे ही वासुदेव जी नदी से लौटने लगे तो शेर और स्यांप उनको खाने के लिए और डराने के लिए दौड़ने लगे। तो जैसे ही वासुदेव जी ने उनको अपनी ओर आते देखा तो दोबारा से डर के मारे आके नदी में खड़े हो गए। अब नदी में आके बोलते हैं इधर जाते हैं, तो ये खाते हैं, इधर जाते हैं तो उसमें डूबते हैं। कैसे पहुँचे गोकुल नगरी? ये सूरज घाट है। जब कभी सूर्य पे ग्रहण पड़ता है, यहीं स्नान होता है, यहीं दान होता है। तो फिर नदी में ही खड़े रहे, बहुत देर खड़े रहे। तो खड़े होने के बाद में अचानक ही उनको दुआ याद आ गया। कहने लगे गंगा यमुना का नहाना और विक्रम का बवार, डूब जाए तो पार है और पार जाए तो पार। वासुदेव जी मन में सोचने लगे, इससे तो मैं नदी में ही चलता हूँ, डूब जाऊंगा तो भी पार हो जाऊंगा, और पार निकली गया तो निकली जाऊंगा। वैसे भी गंगा यमुना में नहाने से तो उद्धार होता है। तो इसीलिए भगवान को लेकर अंदर घुसने लगे। जो गोपी घाट है, यहीं से 16,108 गोपियाँ कृष्ण भगवान ने भोजन लेके भेजी थी अपने गुरु के लिए। इधर उनके गुरु का आश्रम बना हुआ है, बहुत बड़ा दुर्वासा ऋषि मंदिर। हाँ, सुबह आते हैं तो दर्शन भी हो जाते हैं। इस समय पर रात है ना, तो रात में मंदिर बंद हो जाता है। तो अंदर लेके घुसने लगे। जैसे ही अंदर घुसने लगे तो यमुना जल धीरे धीरे बढ़ने लगा। तो वासुदेव जी के मुख में पानी आने लगा था। ये यमुना जल देखो इसलिए बढ़ रहा था। यमुना मैया जो थी, ये कृष्ण भगवान के जन्म से पहले आ गई थी। तो लेकिन इन पर कालिया नाग ने कब्जा कर लिया था। तो कालिया नाग से छुटकारा पाने के लिए यमुना मैया ने विष्णु भगवान से प्रार्थना लगाई थी। तो विष्णु भगवान ने वचन दिया था कि जब मैं रात्रि में तुम्हारे में से जन्म लेके निकल के जाऊँ और तुम मेरे चरण छुओगी तो चौथे नंबर की पटरानी बनोगी, जब भी मैं कालिया नाग को मार के तुम्हारा उद्धार करूँगा। इसीलिए यमुना मैया बढ़ रही थी, आज भगवान आएंगे, मैं उनके चरण छूँगी, मेरा उद्धार होगा। अगर चरण नहीं छुए तो उद्धार नहीं होता। तो जैसे ही अंदर घुसने लगे तो यमुना धीरे धीरे बढ़ने लगा। तो उनके मुख तक पानी आने लगा। तो उन्होंने टोकरा ऊंचा कर लिया, पानी और ऊपर जाने लगा। तो टोकरा ऊंचा कर लिया तो पानी और ऊपर जाने लगा। तो वासुदेव जी के मुख से पानी ऊपर जाने लगा। तो वासुदेव जी चिल्लाने लगे, मैं डूबा मेरे लाल को कोई लो, मैं डूबा मेरे लाल को कोई लो, चिल्लाने लगे। लेकिन रात्रि का समय था, वहाँ कोई सुनने वाला नहीं था। तो भगवान बोले अब जब ज़्यादा देर की तो पिताजी घबरा जाएंगे। तो उन्होंने वासुदेव जी को पता नहीं चलने दिया, टोकरे में से पीछे से चरण लटका दिया। तो चरण छूते के हम यमुना मैया ने मार्ग धीरे घुटमन तक हो गई। तो मार्ग दे दिया। कहते हैं ठाड़े वसुदेव करे पुकार, कैसे जाएंगे यमुना पार, चरण छुए यमुने महारानी, घुटमन हो गया पानी। चरण छूते के हम घुटमन पानी हो गए। उसके बाद में ही नदी पार करके गोकुल गए। जैसे वहाँ से अंदर लेके घुसे थे ना, देखो इधर लाइट लगी हुई है पेड़ों में अंधेरे। इधर वाइट कलर का गेट बना हुआ है बहुत बड़ा, जो लाइट है वहाँ। हाँ, इस गेट से ही लेके जंगल के रास्ते से भगवान को गोकुल गए थे। तो गोकुल इधर है, यहाँ से 12 किलोमीटर दूर। मतलब ये ऐसे ही गए? हाँ, ऐसे ही क्रॉस करके गए थे गोकुल। हम लोग उससे गए, पुल से गए। पहले पुल नहीं थे ना, पानी तो यहीं से नदी पार करके लेके गए थे। क्योंकि पहले चारों तरफ कंस के राक्षस लगे हुए थे ना, इसीलिए जंगल के रास्ते से लेके गए थे भगवान को। हाँ, इसको पार के जब गोकुल पहुँचे, गोकुल में ही भगवान का लालन पालन हुआ है। गोकुल में कृष्ण भगवान 11 साल 56 दिन रहे। उसके बाद में गोकुल छोड़ दिया, नंदगांव बसा लिया। अच्छा, फिर नंदगांव गए? हाँ, नंदगांव ही रहे। गाँव से फिर वृंदावन। वृंदावन में तो गाय चराई है भगवान ने, रासलीला की है। रहते थे वो पहले गोकुल में थे, फिर उसके बाद में नंदगांव। चलाने जाते थे? वृंदावन तो गाय चराने जाते थे। ये विश्राम घाट है। यहीं पे मामा कंस को मार के कृष्ण भगवान खींच के लेके आए। फिर माता पिता को जेल से छुड़ाया। माता पिता से जेल से छुड़ाने के बाद में माता पिता की गोद में सो के विश्राम किया, तो घाट का नाम पड़ा विश्राम घाट। यहीं आरती होती है यमुना मैया की सुबह शाम। जैसे हरिद्वार में होती है हर की पेड़ी भी होती है, जैसे हरिद्वार में होती है हर की पेड़ी पे, वैसे यहाँ मथुरा में होती है विश्राम घाट। शाम को होती है 7 बजे, सुबह होती है 5:15 बजे। 5:15 बजे सवेरे ही? हाँ, सुबह की मंगला आरती होती है। इसी घाट पे बहन भाई हाथ पकड़ के स्नान करते हैं भाई दूज का। हाँ, कार्तिक के महीने में। हाँ, वो तो किया है। जो बहन भाई यहाँ हाथ पकड़ के स्नान करेंगे वो यम के बंधने से मुक्त हो जाएंगे। तो लाखों बहन भाइयों का स्नान होता है। हाँ, बहुत होता है।
बोलो यमुना मैया की राधे 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 हरी लाल की जय आने वाली राधा रानी की जय की সত্যি বলতে কি গাইস মনে হচ্ছিল সারা রাত নৌকায় বসে বসে দাদাটার মুখ থেকে গল্প শুনি। গাইস তোমরাও যদি এই বিশ্রাম ঘাট সম্পর্কে আরো কিছু জেনে থাকো তাহলে অবশ্যই কমেন্টে জানিও। ঘাট থেকে আসলাম, ঘাট থেকে বেরিয়ে আসার পরে যে এই সামনেই বাজার আছে, এখানে চা খাচ্ছি, মানে চা খাবো, চা করতে বললাম। বিশ্রাম ঘাট থেকে টোটো করে এখন আমরা হোটেলে আসলাম। হোটেলের সামনে আমাদের হোটেলটা ঠিক একদম কৃষ্ণ জন্মভূমির সামনেই আছে। এই যে আমাদের হোটেলটা, এই যে যেটাতে লাইট জ্বলছে, এই যে পোস্টারটা দেখছো, পোস্টারের পাশেরটাই। এখন আমরা জন্মভূমির সামনে খাওয়া দাওয়া করতে যাব। আমাদের খুব খিদে পেয়েছে, এখন খাওয়া দাওয়া করবো, দেন জন্মভূমির সামনে গেটে গিয়ে কয়েকটা ছবি তুলবো, কারণ এখন তো বন্ধ। কাল সকাল সকাল চলে আসবো। নেক্সট ব্লগে অবশ্যই তোমরা দেখবে এই যে সেই যার চূড়াটা দেখা যাচ্ছে লাইটে, দুই সাইডে প্রচুর দোকানপাট হয়ে গেছে। নেক্সট ব্লগে থাকছে জন্মভূমির সম্পূর্ণ ভিডিও। এই যে এটা হলো 1 নাম্বার গেট। সম্পূর্ণ ভিডিওটা দেখতে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখো। আর হ্যাঁ, আজকের ভিডিওটা এখানে শেষ করলাম।